Welcome to the digital platform of Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow. I am Dr. Tarun Gupta, Associate Professor in GL Bajaj Institute of Technology and Management, Greater Noida. We are discussing the subject Power Plant Engineering. The subject code is KME 076. In this series, this is our 11th lecture. Today we will discuss pulverized mills. Pulverized mill. Pulverized mill is also known as pulverizer. It is used to convert raw crushed coal into the powder form in order to increase the surface area. A pulverizer is the most important part of a pulverized coal system. Coal is pulverized to increase the surface area so that it can burn easily without using much air. Dear friends, you know that coal is available in coal mines. From the coal mines, coal is supplied to the power plant in the form of lumps, right. It is of very big size. Now, that big size coal is crushed into the crushers, right, and in crushers it convert in the size of 15 to 25 mm, मीन्स 15 से 25 mm तक का साइज कोल का क्रशर्स में बना दिया जाता है. That 15 to 25 mm size coal is supplied to the pulverized mills where it convert in the powder form. So, what is the raw material for pulverizers? Crushed coal, right, and what is the output or final product of the pulverized mill? That is powder form. और पाउडर फॉर्म में क्यों कन्वर्ट किया? सो दैट वी कैन इंक्रीज इट सरफेस एरिया, और अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा सो इट कैन बर्न इजीली, सो यू नीड लेस एक्सेस एयर. Various types of pulverized mill. All the pulverized mills can be categorized into two: impact mill and attrition mills. Impact mill, where the principle of operation is impact, means we are using impact force to convert crushed coal into powder form, and attrition, where principle of working is attrition, means attrition is used to convert crushed coal into the powder form. So, whether it is impact or attrition mills, all can be categorized into two categories. So, in impact mill, ball mill is there and hammer mill is there, while in attrition bowl mill is there and ball and race mill is there. So, we will discuss all these in detail. First one, ball mill. So, you can see this is an example of the ball mill. This diagram you can see. Before discussing this diagram, you must know about it. Ball mill is the one of the oldest pulverized mill. It consists of a large rotating drum, rotates between 100 to 200 rpm, right. Approximately half of it has a large number of steel balls of size 2.5 to 5 mm. ध्यान रखिएगा, सारी बॉल्स का साइज एक जैसा नहीं होता. कुछ बॉल्स का 2.5 mm साइज होता है, कुछ का 3 हो सकता है, कुछ का 3.5 हो सकता है. सो इस तरीके से साइज़ वेरी करता है और अप टू 5 mm तक का ये साइज़ होता है. और ये कितना होता है? ये जो ड्रम आप देख रहे हैं, रोटेटिंग ड्रम जो आप देख रहे हैं, इस रोटेटिंग ड्रम का लगभग हाफ इस तरीके इन बॉल से फिल किया हुआ होता है. नाउ द कोल ऑफ 6 mm साइज इज फेड इनटू द ड्रम बाय ए स्क्रू कन्वेयर. आप देख रहे हैं देयर इज स्क्रू कन्वेयर. सो ये जो स्क्रू कन्वेयर है ये फ्यूल को यहाँ पर सप्लाई करता है, और जिस फ्यूल को सप्लाई करता है उस फ्यूल का साइज होता है लगभग 6 mm. सो इसके लिए इनपुट क्या हुआ, रॉ मटेरियल क्या हुआ? 6 mm का जो कोल है दैट इज रॉ मटेरियल और इनपुट मटेरियल, एंड इट इज सप्लाइड विद द हेल्प ऑफ ए स्क्रू कन्वेयर, right. Now, as the drum rotates, the balls are carried upward to be dropped on the coal. As the result, coal is crushed and grind into the fine particle gradually. Now, अब देखिए ये ड्रम है, ड्रम के अंदर बॉल फिल की है. जैसे ये ड्रम रोटेट करता है इस तरीके से, ड्रम इज रोटेटिंग लाइक दिस, ड्रम इज रोटेटिंग लाइक दिस. सो ये जो बॉल्स बॉटम पर थी ये ऊपर की तरफ आती हैं और ऊपर से नीचे गिरती हैं. दिस इज इम्पैक्ट. इस तरीके से मूव किया, बॉल जो बॉल यहाँ पर अवेलेबल थी, जब ये मूव कर रहा है, देखिए बॉल ये मूव कर रहा है, बॉल यहाँ पर अवेलेबल है. सो ये बॉल ऊपर की तरफ गई और नीचे गिरी, बॉल ऊपर की तरफ गई, नीचे गिर गई, फिर से बॉल ऊपर उठी, नीचे गिरी. दिस इज कंटिन्यूसली, दिस इज प्रोसेस इज डूइंग कंटिन्यूसली अगेन एंड अगेन एंड अगेन. सो ये जो बॉल्स कंटिन्यूसली ड्रॉप हो रही हैं, इम्पैक्ट, दिस इज द इम्पैक्ट.
एंड दीज बॉल्स ड्रॉप्स ऑन द कोल, और ये क्या करते हैं उस कोल को जो अवेलेबल है 6 mm के साइज में, उस कोल को क्रश कर रही हैं, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर रही हैं, राइट। दिस फाइन कोल डस्ट इज स्वेप्ट बाय द हॉट एयर। अब इसमें क्या करते हैं हम, हॉट एयर भी सप्लाई करते हैं। सो ये जो हॉट एयर ड्रम है जो सप्लाई की, वो क्या करती है, जितना उस हॉट एयर के साथ जितना मिक्स हो गया कोल डस्ट, उसको वो अपने साथ कैरी करके ले जाती है। बाकी वहाँ पर क्रश होता रहता है, पल्वराइज होता रहता है, और जितना पल्वराइज हो गया पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, वो उस हॉट एयर के साथ मिक्स हुआ और मिक्स होकर के आगे चला जाता है, ठीक है। द पाउडर कोल इज पिक्ड बाय द एयर एंड कोल एयर मिक्स एंटर द क्लासीफायर वेयर शार्प चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द मिक्सचर थ्रोन आउट द ओवरसाइज कोल पार्टिकल्स। अब देखिए कई बार ऐसा होता है कि कुछ बड़े साइज के पार्टिकल्स भी एयर के साथ मिक्स होकर के चले जाते हैं। सो वी आर यूजिंग ए सेपरेटर, और सेपरेटर वहाँ पर क्या है, जस्ट शार्प चेंज इन द डायरेक्शन। तो जैसे शार्प चेंज इन द डायरेक्शन होता है, जो फाइन पाउडर है कोल के साथ वो मिक्स होकर के चले गए, और बाकी के वहाँ पर नीचे गिर जाते हैं, ड्रॉप हो जाते हैं, और वो जो ड्रॉप हो गए, गिर गए, उनको कलेक्ट करके वापस मिल के अंदर से भेज दिया जाता है, सेंड कर दिया जाता है। दीज ओवरसाइज पार्टिकल्स आर रिटर्न to the drum. The coal air mix from the classifier moves to the exhaust fan and then it's applied to the burner. आप यहाँ देख सकते हैं ये रोटेटिंग ड्रम है, इसमें बहुत सारी बॉल्स हमने फीड की हुई हैं, आधा भरा हुआ है ये, एंड इट रोटेट। अब हम बात करते हैं एडवांटेज की, एडवांटेज क्या है बॉल मिल्स की। सिस्टम इज़ वेरी सिंपल एंड हैविंग वेरी लो इनिशियल कॉस्ट। सबसे पहला बहुत सिंपल सिस्टम है और इसकी इनिशियल कॉस्ट बहुत कम है। ग्राइंडिंग एलिमेंट्स आर नॉट सीरियसली अफेक्टेड बाय मेटल स्क्रैप एंड अदर फॉरेन पार्टिकल्स। सो जो कोल है, कोल को मेटल स्क्रैप या किसी भी तरीके से इसमें कोई मिक्सिंग नहीं होती है। इट इज़ सूटेबल फॉर वाइड रेंज ऑफ फ्यूल एंड वेरी लो मेंटेनेंस कॉस्ट। सो दीज आर द एडवांटेज। बट अगर हम बात करें डिसएडवांटेज की, इन दैट केस डिसएडवांटेज कौन सी हैं, इसका साइज़ बहुत बड़ा होता है। इट साइज इज़ लार्ज एंड हैवी इन कंस्ट्रक्शन, बिकॉज हाफ तो हमने इसको फिल कर दिया, हाफ तो बॉल से ही फिल कर दिया ना, बाकी का फ्यूल डालना है, राइट। इट कंज्यूम मोर पावर, क्योंकि बॉल्स का वेट बहुत ज़्यादा होगा, तो इट कंज्यूम मोर पावर ड्यू टू पुअर एयर सर्कुलेशन वर्क्स लेस एफिशिएंटली, राइट, एंड इट्स ऑपरेशनल कॉस्ट इज़ हाई। और इसमें क्या है, 100 to 200 किलोग्राम फ्यूल को ही एक बार में क्रश आप कर सकते हैं। सो इसकी कैपेसिटी काफ़ी कम हो गई है इसकी। तो इसके लिए फिर हमने क्या किया, एक दूसरी मिल है हैमर मिल, हैमर मिल को हमने यूज़ किया। अब आप देख सकते हैं दिस इज़ अ हैमर मिल, दिस इज़ अगेन इम्पैक्ट मिल। सो इट इज़ नोन एज इम्पैक्ट मिल एज पल्वराइजेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू impact of rotating hammer, right. Rotating hammer with a circumferential speed of 50 to 60 meter per second strike the coal lumps and crush them into smaller piece which get pulverized by the abrasion in gap between the hammer and casing. अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये केसिंग है, ये हैमर है, ये रोटेट करता है हैमर। यहाँ पर ये जो आप 4 देख रहे हैं, दीज आर द स्विंगिंग हैमर, या फ्लोट करते हैं ऊपर से नीचे। जब ये आएगा तो ये बाहर आएंगे, फिर ऊपर चले जाएंगे। सो इनसाइड एंड आउटसाइड ये मूव करते हैं, राइट। और व्हेन दे कम आउटसाइड दे स्ट्राइक ऑन द कोल, और जब कोल पर इम्पैक्ट से, हाई इम्पैक्ट से स्ट्राइक करेंगे, कोल विल कन्वर्ट इनटू पाउडर फॉर्म। सो हियर वी आर यूजिंग प्राइमरी एयर फैन दैट फ्लो दैट ब्लो द एयर विच लिफ्ट द कोल डस्ट। जो कोल कन्वर्ट हो गया पल्वराइज फॉर्म में, सो वो एयर जो सप्लाई किया है एयर फैन से, वो उस कोल को अपने साथ मिक्स करके ले जाएगी, राइट। एंड दैट एयर विच इज़ हैविंग फ्यूल, दैट एयर इज पास थ्रू ए सेंट्रीफ्यूगल डस्ट सेपरेटर। उससे करने से क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल डस्ट सेपरेटर है, सो दैट इज़ बेस्ड ऑन द मास, राइट। जिस फ्यूल का मास ज़्यादा होगा उस फ्यूल को वो रोक लेगा, बाकी को अलाउ करेगा, पास कर देगा जाने के लिए। सो हैवी पार्टिकल्स सेपरेट देयर एंड रिटर्न टू द पल्वराइज मिल, राइट. So this is the principle of the hammer mill. Now if we are talking about the advantage and disadvantage of the hammer mill, you can see hammer mill is very simple in simple and very low in capital cost.
it required minimum floor area, its speed is very high, operation speed is very high. Here wet coal can be pulverized. ये एक एडिशनल एडवांटेज है कि वेट कोल को भी आप पल्वराइज कर सकते हैं, आप उसको पहले ड्राई करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाद में ड्राई करना पड़ेगा, ध्यान रखिए। अब अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज ये है कि एक तो पावर कंजप्शन इज़ वेरी हाई, यू आर डूइंग हैमरिंग एक्शन, सो पावर कंजप्शन इज़ वेरी हाई, इट्स कैपेसिटी इज़ लिमिटेड, राइट। एक और चीज़ है कि केयर इज़ रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट मेटल स्क्रैप एंटरिंग टू द पल्वराइज मिल, और बिकॉज वी आर यूजिंग हैमरिंग एक्शन सो इट इज़ ए नॉइसी ऑपरेशन, नॉइस बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। सो आपको क्या करना पड़ेगा, नॉइस को कंट्रोल करना है, और अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा कैपेसिटी की आपको चाहिए तो आपको कुछ और सिस्टम पे जाना पड़ेगा, फिर एट्रीशन सिस्टम पर जाना पड़ेगा। एट्रीशन क्या है, एट्रीशन मीन्स बिल्कुल आपने पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। जैसे आपने देखा होगा हम गेहूं को, वीट को पीस करके फ्लोर यानी आटा बनाते हैं, गेहूं को पीस करके, दैट इज़ एट्रीशन सिस्टम। सो सेम सिस्टम वी आर यूजिंग हियर, एट्रीशन सिस्टम। सो अगर आप एट्रीशन सिस्टम जाते हैं, यूज़ करते हैं, सो दो मिल हम यूज़ करते हैं एट्रीशन सिस्टम में। बाउल मिल सबसे पहले है, यू कैन से इन द बाउल मिल इट कंसिस्ट ऑफ स्टेशनरी रोलर्स mounted on an electrically driven rotating bowl. I will show the diagram, right, that coal fed through the hopper and get pulverized by attrition as it passes between the sides of the roller and bowl. पहले मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, फिर आपको इसकी थ्योरी बताऊंगा। यू कैन सी द डायग्राम, इज इट क्लियरली विजिबल? ओके, अब देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम को, इन दिस डायग्राम देखिए ये जो आप देख रहे हैं, दिस वन, दिस इज़ द रोटेटिंग बाउल। एक बाउल है इस तरीके से बाउल है, रोटेटिंग बाउल। इट विल रोटेट लाइक दिस, क्लियर, इट विल रोटेट लाइक दिस। इस रोटेटिंग बाउल के साइड में हमने दो स्टेशनरी स्प्रिंग लोडेड रोलर लगा दिए हैं। इसके साइड में इस तरीके से रोलर लगा दिए हैं, एक इधर एक इधर, दो रोलर है, एक इधर है रोलर, एक इधर रोलर लगा, और ये स्टेशनरी है। बाउल और रोलर के बीच में जो गैप है दैट इज स्टैंडर्ड गैप, आपको दिखाई दे रहा होगा। बाउल और रोलर के बीच में जो गैप है दैट इज स्टैंडर्ड गैप। नाउ एक स्प्रिंग हमने यूज़ की हुई है, आप देख सकते हैं। इस स्प्रिंग का पर्पज़ ये है कि ये इस गैप को मेंटेन करके रखे। ये बाउल इस तरीके से रोटेट कर रहा है और एक गैप में कांस्टेंट है, क्लियर। बाउल रोटेट कर रहा है, गैप कांस्टेंट है, और बाउल के बॉटम से वी आर सप्लाइंग हॉट एयर फ्रॉम एयर प्री हीटर, वी आर सप्लाइंग हॉट एयर फ्रॉम एयर प्री हीटर। ध्यान रखिए एयर प्री हीटर क्या है, एयर प्री हीटर इज एन एसेसरीज, मैंने बताया था आपको, एयर प्री हीटर एक एसेसरी है, ठीक है। और यहाँ पर एक हमने इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन यूज़ किया हुआ है, यू कैन सी इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन। इसका पर्पज़ है इंड्यूस्ड करना मीन्स ये जो हॉट एयर आपने यहाँ से सप्लाई की, इस हॉट एयर को यहाँ से सक करना, राइट। सो ये इस इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन का फंक्शन है। नाउ यू कैन सी वी आर हैविंग ए हॉपर और कोल फीडर। सो हियर वी आर सप्लाइंग रॉ कोल, और ये रॉ कोल कौन सा है आप देख सकते हैं, ये रॉ कोल है जो क्रशिंग जोन में क्रश किया हुआ है। क्रशिंग जोन में क्रश करने के बाद इस कोल को हम यहाँ से सप्लाई कर रहे हैं। अब ये कोल यहाँ पर आ गया, बॉल इज रोटेटिंग, दिस कोल इज कमिंग इन बिटवीन द रोलर एंड बॉल, एंड when this ball will rotate, this coal will crush, this coal will you can say convert into powder form, or we are supplying hot air, so this hot air will get mixed with the powder form of the coal. so जितनी एयर कोल के साथ मिक्स हो जाती है उस एयर को ये इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन सक कर लेता है, ये ठीक है, यहाँ से रिमूव कर देता है और इस कोल को यहाँ से सप्लाई कर देते हैं बर्नर के लिए, क्लियर। इसके साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं वी आर यूजिंग क्लासीफायर, दिस इज क्लासीफायर। अभी क्लासीफायर क्या करता है, क्लासीफायर क्लासीफाई और सेपरेट द लार्ज साइज ऑफ द कोल। सो जिस कोल का साइज ज़्यादा होगा वो यहाँ पर कहीं ना कहीं स्ट्राइक करेगा, और स्ट्राइक करने के बाद दैट कोल कम्स डाउन, और पाउडर फॉर्म जो एयर के साथ वेल मिक्स हो चुकी है वो यहाँ से बाहर चली जाएगी, क्लियर। नाउ अबाउट इट्स that it consists of a stationary roller mounted on an electrically driven rotating bowl. Coal fed through the hopper get pulverized by attrition as it pass between the
sides of the roller and bowls. Hot primary air introduced into pulverizer through the bottom of the bowl carries of the coal dust into the centrally located classifier fitted at top. Coarse particles means जिन particles का size बहुत ज़्यादा है, those particles drop back into the ball through the central cone of the classifier, while the fine coal dust air mixture is led away to boiler. So, this is about the ball mill. I have discussed this diagram. Now, come to the advantage and disadvantage of the bowl mill. Dear friends, as we are talking about the advantage of bowl mill, you can see lower energy consumption, because here there is a rotary motion and there is a induced draft fan, right. So, lower energy consumption, less overall dimensions. Less overall dimensions का meaning क्या है कि it required less floor area. Now, leakage of coal from mill casing is practically nil. So, यहाँ पर कोल की जो लीकेज है मिल से वो लीकेज ऑलमोस्ट नील है, राइट, एंड इट प्रोड्यूस लेस नॉइस. सो दीज आर द एडवांटेजेस. बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट डिसएडवांटेज, यू कैन सी इट इज़ सेंसिटिव टू मेटेलिक ऑब्जेक्ट एंटर अलॉन्ग द कोल. मैंने बताया ना, कोल के साथ साथ काफ़ी सारे मेटेलिक ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे फेरस पार्टिकल्स हो सकते हैं, एल्यूमिनियम पार्टिकल्स हो सकते हैं एंड अदर्स, राइट. सो फेरस पार्टिकल्स को तो आप रिमूव कर सकते हैं, लेकिन अगर कोल का साइज पहले ज़्यादा है और फेरस पार्टिकल्स फाइन है, सो देयर इज अ डिसएडवांटेज कि इट इज़ वेरी सेंसिटिव टू द मेटेलिक ऑब्जेक्ट, राइट. साथ में क्या है, अनइवन वियर ऑफ ग्राइंडिंग पार्ट्स. आपने देखा कि जो रोलर है, रोलर ऐसे ही लगे हुए हैं. आपने देखा ना, अगर रोलर भी मूव करते अपने एक्सिस पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी. रोलर मूव नहीं कर रहे हैं, रोलर ऐसे लगे हुए हैं. सो देयर मे बी वियर ऑफ द रोलर. तो रोलर के एक ही जगह से वियर हो सकता है. सो रोलर भी मूव करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी. So, this is the disadvantage, right. Now, our next mill and the last mill is ball and race mill, right. A ball and race mill is also called contact mill. आपको पहले इसका डायग्राम दिखाता हूँ, then I will discuss about it. You can see the diagram. देखिए, are you clearly visible? Yes, it is clearly visible. So, here you can see there are two races, upper race and lower race. Upper race and लोअर रेस. नाउ अपर रेस इज स्टेशनरी. ध्यान रखिए, अपर रेस इज स्टेशनरी एंड लोअर रेस इज मूवेबल. सो लोअर रेस इज रोटेटिंग विद द हेल्प ऑफ गियर ट्रेन. आप देख रहे हैं ये गियर ट्रेन यहाँ पर अवेलेबल है. सो लोअर रेस इज रोटेटिंग. बिटवीन अपर रेस एंड लोअर रेस देयर आर बॉल्स. So, between upper race and lower race you can see there are balls, and these balls are responsible for the grinding. These balls are responsible for the grinding. Clear? So, now you can see this is the hopper from where coal is fed. Now, coal is fed, you can see coal is fed here, or when coal is fed here, this coal comes here and this coal comes here, and it will move toward the center. When coal is moving toward the center, it will rotating. Now, there are springs which maintain the distance between these two races as well as ensure the upper race in contact with the ball, right. So, and from here we can supply the hot primary air. See, this hot primary air carry the coal toward the center as the coal is passing from out to the in, from outer periphery to the central point. So, this ball are responsible for the crushing the coal. So, ये जो balls है ये coal को crush करती जाती हैं और powder form में convert करती हैं. So, ये air, this air or you can say this hot primary air comes in contact with the coal, or it will mix well with the coal, और mix होने के बाद it will move outward. You can say it will move outward, right. Or here there is a classifier. So, heavy fine particles will go out and heavy particles will back drop to the coal. So, ये जो आप देख रहे हैं ये these are the heavy particles comes back to the coal. This is about ball and race mill. Now, about ball and race mill, a ball and race mill also called contact mill. It consists two elements which have a rolling actions with respect to each other. The rolling element may be balls
right, or ring shape roll that roll between two races. मैंने आपको दिखाया था ना, दो बॉल बने हुए थे, right, in the manner of a ball bearing. This is like a ball bearing. The balls are between a top stationary race or ring and a rotating bottom ring, which is driven by a vertical shaft of the pulverizers. The coal is supplied through the rotating table feeder at upper right to fall on the inner side of the race. The moving ball and race catch coal between them to crush and convert it into the powder form. Right. Now we are using springs which hold the upper stationary race, so and adjust the force required so that the upper race and balls and lower race always be remain in contact. Hot air is supplied to the mill through the annular space provided surrounding the race with the help of a forced draft fan. This hot air picked the powdered coal, and the mixing of coal and air enter into the classifier, where sharp change in the direction of mixture throughout the oversized coal particles. राइट सो जिस कोल पार्टिकल का साइज ज़्यादा है, साइज ज़्यादा होने का मतलब है वेट ज़्यादा है, सो दैट ओवर साइज पार्टिकल्स ड्रॉप डाउन एंड रिटर्न बैक टू द grinding mills for further grinding, and the coal whose weight is less or whose size is very less, or who the coal who is well mixed with the air, that coal air mixture move from classifier to the exhaust fan and it supplied to the burner. Clear? Now we are talking about the advantage of ball and race mill. अब बॉल एंड रेस मिल की बात करते हैं. सो लोअर पावर कंजप्शन, लोअर इन वेट, लोअर इन ऑपरेशन कॉस्ट, it is suitable for variable load conditions, and it can handle the coal which have moisture up to 20%. ध्यान रखिएगा 20% तक भी मॉइस्चर तो भी उसको ग्राइंड कर देगी. क्लियर है? अब अगर आप इसको ध्यान से देखें, आपको देखने में कुछ ऐसा नहीं लगता जैसा वीट या गेहूं पीसने वाली जो मशीन होती है, चक्की होती है, फ्लोर मिल, कुछ फ्लोर मिल की तरह नहीं लग रहा. इट इज़ ऑलमोस्ट सेम एज फ्लोर मिल्स. So we are supplying, the only difference is that in that case floor is coming out from the outer periphery. Here coal, pulverized coal is getting from the central. This is the only difference. Clear hai? This is the only difference. So this is about the advantage of ball and race mill. Now we are talking about, this is the last point, we are talking about disadvantage of ball and race mill. अब देखिए, because there is a direct contact, there is a attrition method, and there is a direct contact between both race and balls. So balls are responsible, balls are in contact with the both race and balls are responsible for the grinding action. So there is a more wear and tear. So you have to replace the balls periodically, and replacing of the ball may be a costly affair, and it can be a time consuming method. So you have to bear this, all this. So this is the disadvantage of ball and race mill. Second disadvantage is leakage of fine coal through the mill. आपने देखा होगा, देखिए दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूँ इस डायग्राम में. इस डायग्राम में आप देखिए कि यहाँ सेंटर से, सेंटर पर कोल इनसाइड भी है और सेंटर से बाहर भी जा रहा है. सो देयर मे बी चांसेस ऑफ द लीकेज. यहाँ से कोल लीक हो सकता है. अगर कोल लीक होगा तो क्या होगा, यू हैव टू टेक केयर, अदरवाइज क्या होगा, ये जो कोल पाउडर लीक हो रहा है, इट कैन बी हार्मफुल फॉर द ऑपरेटर. जो ऑपरेटर हैं उसके लिए काफ़ी हैजार्डियस हो सकता है. सो यू हैव टू टेक केयर, और ऑपरेटर हैज़ टू वियर एवरी टाइम, वियर ऑपरेटर हैज़ टू वियर मास्क. क्लियर? सो ये जो बॉल्स आप देख रहे हैं, दिस बॉल विल वियर. अच्छा, इसके साथ साथ क्या, जैसे जैसे बॉल वियर होंगी दिस गैप विल रिड्यूस. सो यू हैव टू मेंटेन द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग. So you have to tightening the spring up to a certain limit. You can tighten the spring. When this gap will reduce after a certain limit, you have to replace the ball, and it may be possible that with the ball, these races, upper race and lower race, can be wear, can be damaged. So you have to replace upper race as well as lower race also. So replacing of upper race and lower race is a costly affair. Also it is a time consuming. So in the plant
there should be more than one machines, or whenever you are doing all these things, you ensure that sufficient stock of pulverized fuel is available in the central storage system, where we are using the storage of 12 to 24 hour. So, either you have to complete the replacement or maintenance in that stipulated time, or you must have more other some alternate arrangement, otherwise the plant will stop working, right. So, this is the main disadvantage of this method, but this is very good machine. Most of the power plants used this machine. So, this is all about the pulverized mills. Thank you very much for listening.